and our next topic is so yesterday we have done discrete time Fourier series. Today we will start with discrete time Fourier transform. So discrete time Fourier transform. So I will write for a discrete time signal. For a discrete time signal x of n, comma, the discrete time Fourier transform, the discrete time Fourier transform which we can also call as DTFT is denoted and defined as capital X of omega will be equal to summation n is from minus infinity to infinity x of n e to the power j omega n. Correct? Where capital X of omega is the discrete time Fourier transform. So in short I am writing DTFT. ठीक है? So discrete time Fourier transform को short में मैं लिख रहा हूँ DTFT. Capital X of omega is the DTFT of x of n. Capital X of omega is the DTFT of x of n. उसके बाद the inverse discrete time Fourier transform. The inverse discrete time Fourier transform. The inverse discrete time Fourier transform is denoted and defined as the inverse discrete time Fourier transform is denoted and defined as x of n 1 by 2 pi integral over 2 pi capital X of omega e to the power j omega n d omega. That is the definition of inverse DTFT. So ये क्या है? This is nothing but the definition of DTFT. This is the definition of DTFT, and this is the definition of inverse DTFT. This is the definition of inverse DTFT. करेक्ट? सो क्वेश्चन लेते हैं जिससे समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या है? फाइंड DTFT मतलब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n a to the power n u of n. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं x of n is a to the power n u of n. तो हाउ मच विल दिस बी? तो x of n कितना है? x of n a to the power n u of n. Correct. But according to definition of DTFT, capital X of omega will be equal to summation minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n. So capital X of omega will be equal to summation n is equal to 0 to infinity. Correct? Why 0 to infinity? Because we have u of n. U of n means unit step. And whenever there is unit step, our summation will be from 0 to infinity. Because of u of n, the summation is from 0 to infinity, and this will be a to the power n. Now what is the value of unit step? Value of unit step is 1.
e to the power minus j omega n. So can I say capital X of omega will be summation 0 to infinity, this is a to the power n, e to the power minus j omega n. Correct? So what is capital X of omega? So capital X of omega will be summation n is equal to 0 to infinity. अब दोनों के पावर में n है, so I can say ये e to the power j omega whole to the power n. So you have a to the power n, you have a to the power n, you have e to the power minus j omega n. तो दोनों में से हमने n और n कॉमन लिया, so this will be a into e to the power minus j omega to the power n. But do you remember the formula? What is the formula of summation? What is the formula of summation n is equal to 0 to infinity alpha to the power n? What is the formula of summation 0 to infinity alpha to the power n? The formula is 1 upon 1 minus alpha. अभी आप लोग अगर कंपेयर करोगे, what is alpha? Alpha is nothing but a into e to the power minus j omega. Correct. So what is capital X of omega? So capital X of omega will be 1 upon 1 minus a into e raised to minus j omega. Correct? है ना? This is like alpha to the power n. So it is 1 upon 1 minus alpha. So can I write capital X of omega as? Can I write capital X of omega as 1 upon 1 minus? Can I say this will be a divided by e to the power j omega? So e to the power minus j omega, e to the power minus j omega can be written as 1 upon e to the power j omega, and this will come out to be e to the power j omega whole divided by e to the power j omega minus a. That will be the answer. Okay. So what we have proved here is, a to the power n u of n dt of t, a to the power n u of n dt of t is e to the power j omega whole divided by e to the power j omega minus a. करेक्ट. तो फिर इसका इनवर्स dt of t कितना हो जाएगा? इसका इनवर्स dt of t होगा a to the power n u of n. Correct? Any doubt in this question? Anyone has any doubt in this question? आपका कोई डाउट है? Okay. So let us have next question. So next question is find discrete time Fourier transform of x of n is equal to n into a to the power n u of n. Can you try this? So फिर से solution में कितना आएगा? So x of n is n into a to the power n u of n, but according to definition of DFT, so DTFT. What is capital X of omega? It is summation n is from minus infinity to infinity x of n e to the power minus j omega n. Correct. So again you have unit step here. Because you have unit step, u of n क्या है? U of n unit step है, और यूनिट स्टेप के कारण समेशन कहां से कहां तक जाएगा? यूनिट स्टेप के कारण द समेशन विल गो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो दिस विल बी n is equal to 0 to infinity n into a to the power n e to the power minus j omega n. So what is capital X of omega? n is equal to 0 to infinity n into ये कितना आएगा? ये आएगा a e to the power j omega whole to the power n, क्योंकि a to the power n भी है, e to the power minus j omega पे भी n है. So मैंने n और n कॉमन निकाल लिया, so ये ऐसा हो गया. But what is the formula of summation n is equal to 0 to infinity n into alpha to the power n?
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये समेशन का फॉर्मूला है। तो दिस फॉर्मूला इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, एन बाहर नहीं निकाल सकते ना कोमल, क्योंकि समेशन एन का है, समेशन एन का है, तो इसका मतलब वेरिएबल एन है, तो यहाँ भी एन है, तो समेशन एन का है, समेशन के अंदर भी एन है, तो क्योंकि समेशन एन का है, वेरिएबल एन हुआ, तो एन को बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर किसको निकालते हैं, बाहर उसको निकालते हैं जो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एन क्या है, एन वेरिएबल है, तो एन को हम बाहर नहीं निकाल सकते, करेक्ट, ठीक है। और ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूले, स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूले, ठीक है। ये समेशन के फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आपको आएगा नहीं फिर। तो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूले, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड समेशन फॉर्मूला। So what will be capital X of omega? So capital X of omega, अभी अल्फा कितना है, सबसे पहले अल्फा कितना है देखो। So alpha is nothing but a into e raised to minus j omega. By the way, कोमल तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो अल्फा इज a e raised to j omega. तो ये कितना आएगा, ये आएगा a into e to the power minus j omega whole divided by 1 minus a into e raised to minus j omega whole square, करेक्ट, राइट। तो दैट इज, मतलब आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर आपको सिंप्लीफाई करना ही है तो यू कैन राइट इट एज a raised to e raised to minus j omega whole divided by, I can write this as 1 minus a upon e to the power j omega whole square. So this can also be written as a into e raised to minus j omega whole divided by e to the power j omega minus a whole square divided by e to the power j omega whole square, करेक्ट। तो ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में आके कितना बनेगा, so x of omega will become a into e raised to minus j omega e to the power j2 omega whole divided by e to the power j omega minus a whole square. सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा a into e to the power j omega whole divided by e to the power j omega minus a whole square, राइट। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब कितना होगा, स्क्वायर मतलब ये हो गया e to the power j2 ओमेगा, करेक्ट। तो ये स्क्वायर है, ये टर्म न्यूमरेटर में आएगा, तो दिस इज e to the power j2 ओमेगा, तो ये माइनस j ओमेगा और ये 2j ओमेगा, सो माइनस और प्लस मिलके e to the power j ओमेगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो हमने क्या प्रूव किया, n इंटू ए टू द पावर इन यू ऑफ एन, इसका DTFT कितना आता है, इसका DTFT आता है a इंटू ई टू द पावर j ओमेगा होल डिवाइडेड बाय e to the power j omega minus a whole square, and this will be the inverse DTF, correct. That is what we have solved. Any doubt in this question?
Any doubt in this question? और ये विंटर 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और दोनों जगह ये 7 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। उसने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो एक्स ऑफ एन दिया है, एक्स ऑफ एन का वैल्यू 1 दिया है एंड दिस इज 0 अदरवाइज, करेक्ट। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा? तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा एक्स ऑफ एन e to the power minus j omega n, करेक्ट। n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन अभी हम रेंज क्या है, देखो समेशन कहां से कहां तक लेंगे, ये उन्होंने दिया हुआ है, ये देखो ये दिया है, ये किस लिए दिया है, 0 से लेके 4 तक। तो हम लोग समेशन कहां से कहां तक लेंगे, समेशन लेंगे n इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, 0 to 4। और x ऑफ n का वैल्यू कितना दिया है, x ऑफ n का वैल्यू 1 दिया है, तो मैं x ऑफ n की जगह क्या लूंगा, मैं x ऑफ n की जगह 1 लूंगा। तो दिस इज 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा n, करेक्ट। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ। राइट, सो n इज इक्वल टू 0 to 4, ये आएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना आएगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 to 4 e टू द पावर माइनस j ओमेगा होल टू द पावर n, करेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो एक तरीका इसका लिखने का ऐसा है कि e टू द पावर माइनस j ओमेगा इन टू द पावर 0 प्लस समेशन का मतलब एडिशन है, e रेस टू माइनस j ओमेगा टू द पावर 1 प्लस e रेस टू माइनस j ओमेगा टू द पावर 2 प्लस e रेस टू माइनस j ओमेगा टू द पावर 3, है ना, n के अलग अलग वैल्यूज कहाँ तक, 4 तक। तो e रेस टू माइनस j ओमेगा टू द पावर 4, तो एनीथिंग टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 ये 1 होगा, ये होगा e रेस टू माइनस j ओमेगा प्लस e रेस टू माइनस j2 ओमेगा प्लस e रेस टू माइनस j3 ओमेगा प्लस e रेस टू माइनस j4 ओमेगा, करेक्ट, राइट। कुछ लोग ऐसा आंसर लिखते हैं, ठीक है? अभी कुछ लोग तो आंसर ऐसा लिखना पसंद नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एज इट इज उठाते हैं, e टू द पावर j ओमेगा माइनस j2 ओमेगा e रेस टू माइनस j3 ओमेगा e रेस टू माइनस j4 ओमेगा, और ये कितना होगा, ये होगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1, और मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय e टू द पावर माइनस j ओमेगा। सो होगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा इंटू कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, ये होगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा e टू द पावर माइनस j2 ओमेगा e टू द पावर माइनस j3 ओमेगा e टू द पावर माइनस j4 ओमेगा, ठीक है। ये होगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, तो मैं थोड़ा सा इसको जहाँ पे जगह है वहां पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, करेक्ट। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किए, उसके बाद ठीक है, ये पहले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है,
माइनस, ठीक है, इसमें से इक्वेशन 2 मतलब ये राइट साइड सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, राइट। तो ये वाला कितना है राइट साइड, ये है ई रेस टू माइनस जे ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस जे थ्री ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस जे फोर ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस जे फाइव ओमेगा, करेक्ट। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जे ओमेगा 2 3 4 ओमेगा 2 3 4, ठीक है। सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा इज इक्वल टू, ये होगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस जे फाइव ओमेगा, करेक्ट। सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का आंसर आता है 1 माइनस ई रेस टू माइनस जे फाइव ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा। कुछ लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं, करेक्ट। तो कुछ लोग यहां तक छोड़, सो एक्स ऑफ एन इज डेल्टा एन, ठीक है। देन according to definition of DFT, according to definition of DTFT, so capital X of omega will be summation x of n e to the power minus j omega n, where n is from minus infinity to infinity. अब x of n कितना है, x of n is del of n, so summation, this is minus infinity to infinity, this is del of n e to the power minus j omega n. So capital X of omega will be equal to summation minus infinity to infinity e to the power j omega n, करेक्ट। बट अगर आपको रिलेशन याद होगा, ये रिलेशन याद नहीं होगा तो भी आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा एन, एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा एन इज एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा एन, एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा एन इज एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा एन, तो ई टू द पावर जे ओमेगा एन डेल्टा एन, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा जीरो इंटू डेल्टा एन, राइट। सो ये कितना हो गया, सो ई रेस टू जीरो इंटू डेल्टा एन, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा, करेक्ट। तो जब एक्स ऑफ एन को हम लोग डेल्टा एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन बिकम जीरो, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन डेल्टा एन, सो ई रेस टू माइनस जे ओमेगा जीरो इंटू डेल्टा एन, तो ई रेस टू जीरो इंटू डेल्टा एन, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एन। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, तो दिस ये हो जाएगा एन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। तो समेशन डेल्टा एन, सो इसका वैल्यू 1 है, राइट। सो हमेशा याद रखना, क्योंकि डेल्टा एन कौन सा सिग्नल होता है, डेल्टा एन का वैल्यू बाकी सब जगह जीरो है और डेल्टा एन सिर्फ जीरो पे 1 है, और ये बाकी सब जगह इसका वैल्यू जीरो है। तो समेशन डेल्टा एन जब आप करोगे, तो समेशन डेल्टा एन में क्या होगा, समेशन डेल्टा एन में होगा इसमें बहुत सारे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो,
बीच में +1 है, +0 +0 +0 एंड सो ऑन। करेक्ट। सो समेशन डेल्टा एन कितना होगा? समेशन डेल्टा एन विल बी 1। ठीक है, तो समेशन डेल्टा एन विल बी 1, राइट। और क्योंकि समेशन डेल्टा एन 1 है, दिस इज द आंसर। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज कि डेल्टा एन का डीटीएफटी क्या है? डेल्टा एन का डीटीएफटी क्या है? 1 है। तो 1 का इनवर्स डीटीएफटी क्या है? डेल्टा एन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? राइट, डेल्टा एन वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? सो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? सो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ so x of n will be 1/2 pi, right? So this is the definition of inverse DTFT. X of n is 1/2 pi integral over 2 pi x of omega e raised to j omega and d omega. So I will say इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन को लेता हूँ -π to π, क्योंकि 2 पाई का इंटीग्रेशन लेना है। 2 पाई डिस्टेंस हमको कवर करना है। 2 पाई डिस्टेंस कैसे कवर कर सकते हैं? या तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई लेते हैं, या फिर इंटीग्रेशन -π to π लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 to 2 पाई भी ले सकते हो और आप -π to π भी ले सकते हो। आई हैव टेकन -π to π। एक्स ऑफ ओमेगा कितना है? दिस इज डेल ऑफ ओमेगा एंड दिस इज e to the power j omega and d omega। करेक्ट। उसके बाद x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n कितना बोलते हैं हम लोग? x ऑफ n इंटू डेल ऑफ n बोलते हैं x ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ n। करेक्ट। तो e टू द पावर j ओमेगा, सॉरी, so what will be x of omega into del of omega? So it will be x of 0 into del of omega. Correct. X of 0 into del of omega. ठीक है, तो e to the power j omega n del of omega j0 n del of omega। करेक्ट, क्योंकि जब हम लोग किसी भी फंक्शन को डेल ऑफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेल ऑफ ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ओमेगा 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे ओमेगा हैज बिकम 0, तो ओमेगा विल बिकम 0 और ये आएगा e टू द पावर 0 इंटू डेल ऑफ ओमेगा। करेक्ट। तो ये हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा n डेल ऑफ ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल ऑफ ओमेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन -π to π, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है डेल ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। बट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ ओमेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 1। इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 1। करेक्ट। सो एक्स ऑफ एन कितना हो जाएगा? एक्स ऑफ एन हो जाएगा 1/2 पाई। एक्स ऑफ एन हो जाएगा 1/2 पाई। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ किया? तो एक तरफ 1/2 पाई है, एक तरफ डेल ऑफ ओमेगा है, तो हमने क्या प्रूफ किया? डेल ऑफ ओमेगा का इनवर्स डीटीएफटी क्या है? डेल ऑफ ओमेगा का इनवर्स डीटीएफटी है
डेल ऑफ ओमेगा का इनवर्स डी टी एफ टी है 1/2 पाई, सो 1/2 पाई का डी टी एफ टी है डेल ऑफ ओमेगा, 1/2 पाई का डी टी एफ टी है डेल ऑफ ओमेगा। उसके बाद 1 क्या है, 1 का डी टी एफ टी कितना है, तो 1 का डी टी एफ टी है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। मैं दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका 1/2 पाई का इनवर्स डी टी एफ टी कितना होगा, तो कुछ नहीं, मैंने आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 2 पाई, दोनों साइड को 2 पाई से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 का डी टी एफ टी कितना होता है, 1 का डी टी एफ टी होता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। करेक्ट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? The inverse DTFT, find the inverse DTFT of ठीक है, so this is minus omega c, let us say this is omega c, let us say this is amplitude 1 and let us say this is pi and let us say this is minus pi। ये मैंने आपको जानबूझ के पाई और माइनस पाई का वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, पाई से माइनस पाई से पाई तक करते हैं। तो कैन यू फाइंड द इनवर्स डीटीएफटी ऑफ दिस? ठीक है, मैं तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करो। ठीक है, नहीं आया तो मैं करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स डीटीएफ। सब लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, प्लीज डू इट। So I will start with the definition. So I will say according to the definition of inverse DTFT, so माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका सॉरी एक्स ऑफ ओमेगा है ये, ठीक है। so this is minus omega c to plus omega c। ठीक है, सो e टू द पावर j ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ठीक है, तो e टू द पावर j ओमेगा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी विल डिवाइड बाय jn। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना पड़ेगा, सो दिस इज 1/2 पाई e टू द पावर j ओमेगा c n।
तो होगा पाई एन, करेक्ट। और इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ ई रेज टू जे ओमेगा सी एन माइनस ई रेज टू माइनस जे ओमेगा सी एन होल डिवाइडेड बाई 2j, करेक्ट। बट साइन थीटा is e to the power theta minus e to the power minus theta whole divided by 2j. तो x of n कितना हो जाएगा? x of n will be 1 by pi n into sin omega c n, ठीक। तो ये आएगा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा sin ओमेगा सी एन होल डिवाइडेड बाय पाई एन, करेक्ट। इसका DTFT कितना है? इसका DTFT आता है ये रेक्टेंगल जो हमारा क्वेश्चन था, राइट, माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी, एम्पलीट्यूड इज 1, और फिर इसका इनवर्स DTFT हमने प्रूव किया। इसका इनवर्स DTFT कितना है? इट इज साइन ओमेगा सी एन डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?